Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic, judicial review. In the previous classes, we have completed the chapter on Supreme Court. I have given you all the hierarchy of the courts in India in the previous lectures. So after this particular judicial review chapter and one more topic attached to it, that is judicial activism, or in other words judicial overreach or judicial dynamism. So these are all interrelated concepts and we will be studying them in this particular class. After that we will be jumping to high courts and then to subordinate courts. ठीक है, तो हायरार्की जो बताई थी मैंने वैसे ही चलेंगे. नाउ स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक जुडिशियल रिव्यू. नाउ वी ऑल नो that in our constitution nowhere this particular term has been mentioned explicitly. ठीक है, but in India only Supreme Court and High Court have this particular power of judicial review. No subordinate courts have the power of judicial review. इतना समझ में आ गया. एक और बात सुनिए यहीं कि जुडिशियल रिव्यू में दूसरे केसेस तो जुडिशियल रिव्यू हो ही सकते हैं. जुडिशरी कैन जुडिशियल रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स ऑल्सो. तभी तो हमको पता चलता है कि जो भी डिक्री आई है, जो भी ऑर्डर आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच और द हाई कोर्ट बेंच, अगेन इट हैज़ बिन फाइल्ड. उसी पर्टिकुलर केस को वापस फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में. तो वो क्यों फाइल कर सकते हैं? बिकॉज जुडिशरी कैन इनिशिएट अ जुडिशियल रिव्यू प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट्स ओन जजमेंट या ऑन इट्स ओन जजमेंट. ठीक है. So this is the first case, Marbury v. Madison, and the judge presiding was John Marshall. So this is the first case. ये नाम से देख के क्या लिखता है कौन से कंट्री में? So judicial review concept has been originated in USA. Understood? And this is the first case where this particular idea come into essence. ठीक है. सो मार्बरी वी मेडिसन बाय जज जॉन मार्शल. तो ये था पूरा कहानी. नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव दिस पावर. तो कैसे मिलती है? अंडर आर्टिकल इम्प्लिसिटली 13 द डेफिनेशन ऑफ लॉ. 32 किसको मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ writ jurisdiction of high courts. So via these three articles, judicial review power has been entitled implicitly to the two courts, Supreme Court as well as all the high courts in India. Understood? Now the Indian judiciary, we are talking about this particular judicial review. So the power of judicial review of Indian judiciary is much narrower than power of judicial system of USA. Why this is the case? A certain argument can be given to this because in our constitution there is a phrase called procedure established by law. Article 21 connotes that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. So I have told you in detail the procedure established by law as well as the due process of law. Procedure established by law is the concept originated in UK, Uttarakhand, United Kingdom, and due process of law is the देन of USA. ठीक है. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है छोटा सा बता देता हूँ. इसका डिफरेंस होता है procedure established by law. A law can be declared void on the substantive grounds. ठीक है. That a particular authority is not competent to make a particular law, but that particular law has been made and applied in the on the Indian soils. और ये किसी को पता ही नहीं चल रहा. So judiciary has the power to do judicial review of that particular law, and as the particular authority is not competent to make that particular law, that's why this particular law will be striked out. Or some procedure, the particular procedure
that has been written in the constitution hasn't been applied here. It means आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, आपने कैसे किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है. देयर इज अ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे करना है इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये होता है सब्सटेंटेटिव ग्राउंड पे जज कर रही है हमारी जुडिशरी, ठीक है. इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द यूएसए द एक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड void ऑन द प्रोसीजरल ग्राउंड्स ऑल्सो. It means the reasonableness. Okay, the particular authority is competent to make a law. All the procedures have been followed to make this particular law. But in procedure established by law, whether the law is itself fair or not, we can't judge that. Why? Because जुडिशरी के पास पावर वो नहीं दी गई है. इट मीन्स अगर कंसेप्ट को आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये बोल रहा है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं. एंड दिस पर्टिकुलर आपको अच्छे तरह पता है कि ये यूके के पास है. यू कांट क्वेश्चन अगेंस्ट पार्लियामेंट देयर. जुडिशरी तो बहुत नीचे है उधर, ठीक है. बट वी ऑल नो 1978 मेनका गांधी केस. क्या हुआ था इस केस में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लिसिटली. कौन से आर्टिकल के अंडर? वही सेम जहां प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, आर्टिकल 21. सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब ये क्या बोल सकते हैं इसको, आप जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हो इसको, ठीक है, या जुडिशियल ओवररीच भी बोल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर थिंग hasn't been written in our constitution by our constitutional fathers and they are very wise, they have a great wisdom, but then also they have forgotten to write this particular due process of law. Instead they choose procedure established by law to be written in article 21. So there is some reasonableness in their thoughts also. पर नहीं, हम इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोल सकते हैं, इसको जुडिशियल ओवररीच भी बोल सकते हैं, है ना. तो हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, मेनका गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ is also the part of article 21. But mind you that in our constitution you can't find this particular word of judicial review. ठीक है. अब ये जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ से है? बहुत सारी है. सॉरी, पावर तो नहीं, पर केसेस कहाँ से हैं? बहुत सारे हैं. बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969. तो यहाँ इसके ऊपर ही केस चले गया. मेनका गांधी केस जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अबाउट? NJAC, National Judicial Appointment Commission. So this particular National Judicial Appointment Commission has been made via an amendment in the constitution itself by the legislature. So judicial review has been taken place of this particular NJAC act and judiciary finds it violative of the provisions of the constitution. क्यों? पहले तो हमारे पास आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. एक तो वो है, ठीक है, दैट इज नॉन जस्टिसेबल पार्ट. बट आपने देखा होगा इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो इन प्रीलिम्स वी हैव बीन आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स इन इंडिया कैन सीक द एडवाइस, असली में तो नहीं पूछेंगे, बट सीक द प्रोविजंस ऑफ द DPSP टू वैलिडेट अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल. तो इसकी भी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, आपको पता होगा और आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा. बिकॉज DPSP आर फंडामेंटल इन लॉ मेकिंग ऑफ इन आवर कंट्री. अंडरस्टूड? दे आर नॉन जस्टिशिएबल बट कोर्ट उनको फिर भी यूज़ कर सकता है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल बट कोर्ट उनको भी कभी कभी यूज़ कर सकता है टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ. ठीक है. सो एट द एंड इतनी सारी जो मैंने आपको कहानी बताई ये आपको नैरो वर्ड समझ में आ गया. तो एट द एंड जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन क्या है? सो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया
किसको दी हुई है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को। टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक तरह से लिटमस टेस्ट है, ठीक है, किसका? या तो पार्लियामेंट्री एनेक्टमेंट्स का, पार्लियामेंट क्या करती है? एनेक्ट लॉ, दे एनेक्ट लॉज, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एनेक्ट करता है लॉ? नहीं, दे गिव ऑर्डर्स इन द एग्जीक्यूटिव फॉर्म, है ना। तो अगेंस्ट बोथ दिस पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू कैन टेक प्लेस, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री एनेक्टमेंट्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। और किसके ऊपर? कौन कौन से केसेस में? इन बोथ यूनियन या पार्लियामेंट, यूनियन या सेंटर और स्टेट्स। सो दिस पर्टिकुलर पावर is given to SC, Supreme Court and High Court in both the lists, whether it is a law pertaining to union list or state list, ठीक है। So this is whole of the judicial review. Now we will jump to the judicial activism. So observe this. So now we will be jumping to judicial activism और in other words overreach, ठीक है। तो दोनों आपका पर्सपेक्टिव है कि वो एक्टिविज्म कर रहा है या ओवररीच कर रहा है। एंड दिस होल प्रोसेस is also known as judicial dynamism. It means the judiciary is not static in its functioning, but it is obtaining a dynamic way in interpreting the provisions of the constitution, ठीक है। कैसे कर रही है? मैंने अभी आपको बताया जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। फिर क्या है? मेनका गांधी केस बताया मैंने आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड कर दिया 1978। केशवानंद भारती केस, द फेमस केस ऑफ 1973। इसमें क्या हुआ? द जुडिशरी हैज टर्म्ड और कॉइंड अ न्यू टर्म इटसेल्फ। व्हाट इज इट? बेसिक स्ट्रक्चर। कहीं था क्या ये? कहीं नहीं था, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था ये। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। सो एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन जुडिशरी द पावर्स टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो इसीलिए इसी के एस्पेक्ट में जुडिशरी ये सब कर रही है। क्यों? तो टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस जुडिशियल एक्टिविज्म इज द origin of PIL, public interest litigation. So there is a provision or term called in the USA social action litigation. So on the lines of this particular judicial review कहाँ था? USA से। social action litigation कहाँ से? USA से। So one of the aspects of this particular social action litigation same analogous in India is PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर PIL? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पायनियर और द वुमेन हु हैज, जिसने बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, इसकी पहले से भी था पर बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, वो कौन थी? PN भगवती, जज PN भगवती। और एक और है कृष्णा अय्यर है, आई थिंक जज। So these two are termed as pioneer of PIL in India. Now what is PIL? It means any person or organization can start a legal proceedings, ठीक है, they can start a legal proceeding against any company or any firm or any public office, ठीक है, और एनी पब्लिक सर्वेंट। बेसिकली दिस PIL इज अगेंस्ट
अ पब्लिक ऑफिस और अ पब्लिक सर्वेंट। बट इसमें एक टर्म आ जाती है कि दिस पर्टिकुलर PIL कैन बी लॉज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अच्छा, ये PIL बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही हो सकती है। जुडिशियल रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। लोअर कोर्ट्स कांट एंटरटेन दिस PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो हम यहाँ थे, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये बेसिकली नॉर्मली एक पब्लिक अथॉरिटी या एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ दाखिल की जाती है इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट दिस पर्टिकुलर PIL, दिस पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल केस, इसका बेसिस क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट। It means the one who is filing PIL in the court can't have ulterior motives। कैसे? जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट ड्यू टू सम लव नेचर और लव कंडीशंस, आप समझ नहीं सकते हैं, तो उनके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, एक थर्ड पर्सन की वजह से। आगे जाके इन द फ्यूचर ये कैसे बने? दीज आर बिलीनियर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। नाउ जो मान लीजिए एक्स कंपनी है रमेश की, ये कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है, डेट आर रेस्ट्रिक्टेड इन ट्रेड। और वाई कंपनी है, दोनों बिलीनियर्स है ना, कंपनी है सुरेश की है, तो सुरेश केम टू नो अबाउट दिस माल प्रैक्टिसेस डन बाय दिस पर्टिकुलर एक्स कंपनी, ठीक है। तो क्योंकि इनकी पुरानी दोस्ती है तो क्या करेगा? एज अ PIL सुरेश विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड दाखिल दिस PIL, ठीक है। सो ही हैव अल्टीरियर मोटिव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ओनर ऑफ द कंपनी एक्स। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर PIL शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रो बोनो पब्लिको। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इतना समझ में आ गया? सो इसीलिए जैसे कि ये टर्म यूज हो जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज में अगर है कोई भी इशू तो फिर वो PIL के अंडर आ सकता है। सो डेट मीन्स ऐसा नहीं है कि बस जो पब्लिक ऑफिस है या पब्लिक सर्वेंट है उसी के खिलाफ हो सकती है। सो अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इस मामले में? भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बहुत ही कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो PIL दाखिल करेंगे, ठीक है। देन दे कैन कंपनसेट जो भी लिटिगेंट है, जो भी PIL दाखिल की है और पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज है। आप मान लीजिए कोई एक पहाड़ी है, यहाँ ट्राइबल पीपल है, ठीक है। ड्यू टू माइनिंग इन दिस पर्टिकुलर हिल द लाइव्स ऑफ द these tribal peoples are getting affected, but as they are uneducated persons, so a particular DM of this whole area, उसके पास तो बहुत नॉलेज है, so he applied for a PIL in the high court or supreme court, ठीक है। so there is no ulterior motive of DM here, so supreme court or high court will generously accept this PIL, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा? फर्स्टली ही विल ऑर्डर दैट स्टॉप माइनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हिल। क्यों? क्योंकि सेक्रेड ग्रे जो ग्रूव्स हैं उनके ट्राइबल लोगों के, वो उनको हार्म पहुंच रहा है। देन द फॉरेस्ट एरिया, द फॉरेस्ट कवर ऑफ दैट पर्टिकुलर हिल इज गेटिंग हार्म्ड। देन द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, उनको हार्म पहुंच रहा है। क्लाइमेट चेंज, जो लोकल एरिया क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आपको समझ आ रही बात? तो क्या करेगा? सबसे पहले तो यहां रोक देगा। देन कंपनसेट द दीज पार्टीज ट्राइबल पीपल्स। क्यों? क्योंकि यहां जान की आपने हानि पहुंचाई है, माल की हानि पहुंचाई है, पेड़ों को हानि पहुंचाई है। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ऑल्सो कंपनसेट द विक्टिम। इतना समझ आ गया आपको? सो दिस PIL ये बहुत ही मतलब एक ऊंचे लेवल पे जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने को मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं आपको इससे हटके जो रियल एग्जांपल्स दूं,
तो देखिए सबरीमाला टेम्पल इशू वो क्या था, एक जुडिशियल एक्टिविज्म है। ऑल द सिटीजन्स नहीं, ऑल द पर्सन्स हैव गिवन राइट टू फ्रीडम, जो हमारे पास 4 आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक, 28 तक, है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर राइट टू फ्रीडम बंडल वी हैव गिवन डेट ईच एंड एवरी डिनोमिनेशन हैज द राइट टू कंडक्ट इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स, बट इन द सबरीमाला टेम्पल इशू जुडिशरी हैज क्या होता है हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड होता है, हस्तक्षेप, तो हैज पुट हिज लेग इन दिस पर्टिकुलर केस। देन ट्रिपल तलाक केस, that is also related to a particular denomination, but in that particular case also Supreme Court has given a decree, है ना। So these are all part of judicial activism। और इसमें क्या थी, इसमें PIL इंक्लूडेड थी, नहीं तो कौन जाता कि सबरीमाला में हमको पर्टिकुलर सबरीमाला टेम्पल में ही जाना है, या पर्टिकुलर हमें ट्रिपल तलाक में जो वुमेन अफेक्टेड है उन्हीं को हमको जस्टिस दिलाना है। इतने सालों से चल रहे हैं वो सब तो ना। So PIL plays a major role in this. The first case of PIL in India is Hussain-Ara Khatun case in 1979। और इसके बाद बहुत सारे केस आए हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस इन 2013, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पार्लियामेंट हैज़ टू एनेक्ट अ लॉ उसी के ऊपर, है ना। देन SR बोमई केस, ये हमने पढ़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट सेकुलर इज बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या गया, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ फुल गाइडलाइंस दैट व्हाट इज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, तो उसके ऊपर उसने पूरा दिया। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, बट इन अदर सेंस वी कैन ऑल्सो कॉल इट जुडिशियल ओवररीच। हाउ यू कैन सी दीज आर फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर वेरी प्योर, they can't be touched by anything in India except some cases है तो है ही हैं। So Supreme Court is called custodian of the Constitution or fundamental rights, but Supreme Court is itself determining the limitations of fundamental right, है ना। कैसे, हमने अभी तो देखा इतने सारे केस, मेनका गांधी, केशवानंद भारती केस, है ना, ऊपर से सबरीमाला टेम्पल इशू हमने देखा, ट्रिपल तलाक हमने देखा, ठीक है। सो दीज कम से कम ये ओवररीच भी कभी कभी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। नाउ अनदर थिंग टू दिस पर्टिकुलर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैव बीन पेंडिंग इन द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उससे थोड़े से कम हाई कोर्ट्स में, उससे थोड़े से कम सुप्रीम कोर्ट में, फिल्टर होके आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो अच्छे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सो एज दिस पर्टिकुलर जुडिशियल सिस्टम हैज बीन ओवरस्ट्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया, देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग इट्स एक्टिविज्म और हाई कोर्ट्स आर यूजिंग इट्स एक्टिविज्म। कैसे एक्टिविज्म यूज किया है, बाय एंटरटेनिंग दीज PILs। सो पहले से आप ओवरस्ट्रेस्ड हो और आप और वर्कलोड लेना चाहते हो, सो PIL हैज जनरेटेड एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। मोर ओवर फ्रिवलस PILs हैज बीन इनिशिएटेड इन द जुडिशरी, जिसमें कोई अल्टीरियर मूव है, ठीक है। अल्टीरियर क्या होता है, मतलब जो सामने दिख नहीं रहा पर वह मूव है। एट द फेस इट सीम्स दैट a particular case has involved this particular public interest at large, but ulterior motive is different, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर इंसान को पर्सनल पनिशमेंट देना, ठीक है, उसके पर्सनल लेवल की फाइट्स हैं, अंडरस्टूड। सो टू चेक दिस फ्रिवलस केसेस एंड टू चेक दिस ओवरस्ट्रेसिंग ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हैज developed a mechanism of स्क्रीनिंग कमिटीज। ये स्क्रीनिंग कमिटीज क्या होती है, इनमें पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं इसमें वो होते हैं, और वो क्या करते हैं, बाय अपॉइंटिंग दिस स्क्रीनिंग कमिटीज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इस्टेब्लिश अ prima facie case
प्राइमा फेसी मतलब ऑन फर्स्ट ग्लैंस इज दिस, इस स्क्रीनिंग कमेटी को ये समझ में आ जाए कि यस दिस केस, पर्टिकुलर केस इज good to be placed on the bench of the Supreme Court. Understood? It means this particular PIL is very genuine and Supreme Court or High Court should entertain this. ठीक है? So the responsibility has given to the PIL party, जो भी PIL डाल रहा है उसी के ऊपर responsibility दे दी that you yourself establish a prima facie case in front of these screening committees. ठीक है? Moreover, amicus curiae. Supreme Court has appointed amicus curiae. इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट. क्या करने के लिए? यही PIL के केसेस को देखने के लिए कि कितने जेन्युइन है ये, कितने फॉल्सिफाई है ये सब. अंडरस्टूड? सो टू चेक दिस फ्रिवलस केस एंड दिस ओवरस्ट्रेसिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है. मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट हैज एनहांस्ड द पनिशिंग पावर्स और प्यूनिटिव पावर्स टू दोज हु आर फाइलिंग दिस फ्रिवलस केसेस. तो उनके कुछ इम्प्रिजनमेंट दे देगा, उनको हैफ्टी फाइन दे देगा. कितना करो? क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया. अंडरस्टूड? एक और बात मैंने आपको बतानी भूल गया. व्हाइल एंटरटेनिंग दिस PILs, सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू, किसके लिए? टू क्वैश द फीस ऑफ दिस पर्टिकुलर PIL. ठीक है. मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए. एक परमानंद केस है, उसमें क्या है? हॉस्पिटल से रिलेटेड है कि कोई भी इंसान को अगर जान मान की हानि हो रही है, बहुत उसका ब्लड लॉस हो रहा है, उसके लाइफ उसके रिस्क पे है, तो उसे हॉस्पिटल्स मना नहीं कर सकते कि एक पहले फॉर्म भरो उसके बाद ही जा सकते हो. आपने कोई मूवी में भी देखा है शायद से, मुन्ना भाई MBBS में ऐसा कुछ होता है ना. तो डेट इज अ रियल लाइफ केस, परमानंद कटारा केस है शायद से. ठीक है. फिर नाज फाउंडेशन, LGBTQ की जो नाज फाउंडेशन, LGBTQ जो PIL दाखिल की थी बाई नाज फाउंडेशन, उसने क्या किया? इनको लीगल राइट दिलाया LGBTQ को. तभी तो अभी थर्ड जेंडर भी आने लग गया है ना. देन लीविंग कंपनसेशन रिलेशन, you know this particular trend has been emerged in India in the modern times, to that the particular couples are living in a live-in relation, so they are kind of they are not married but they are kind of married. So इस particular living in relation के cases में हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था इंडिया में. क्यों? बिकॉज इट इज अ रिसेंट फिनोमिना. यस, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना हैज बीन सीन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट इंडिया तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना थोड़ी, तो अभी फिनोमिना है. सो नंबर ऑफ केसेस हैव बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. किसके? लिविंग इन रिलेशन के? नहीं, इसके रिलेशन में नहीं. क्या होता था भाई, हैविंग दिस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल दे आर प्रोड्यूसिंग किड्स एंड मोर ओवर दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड और नॉट अंडर द रूल्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी. क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्ट प्रोवाइडिंग द प्रोविजंस और पनिशमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लिविंग इन रिलेशंस. तो बाद में या तो लड़की चली जाती थी या लड़का चले जाता था. अब वो बच्चा का क्या करेंगे? उसकी भी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स हैव बीन इमर्ज इन द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो तब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्री दी कि यस, लिविंग इन रिलेशन is considered as a married couple and compensation can be given to the girl. ठीक है. तो क्या बोलते हैं उसे? अच्छा टर्म क्या है? एलिमनी. तो एलिमनी देनी पड़ेगी, किसी को भी आप समझ सकते हो. सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवरेज, जुडिशियल रेस्ट्रेंट. दिस जुडिशियल रेस्ट्रेंट, दिस पर्टिकुलर phrase has been endorsed by the Supreme Court now and then. क्यों? Because Supreme Court ने start तो कर दिया, but once you have started a particular thing, you can't know कि ग्राउंड पे ये चीज जाके क्या बन जाएगी. तो क्या हुआ? हाई कोर्ट्स, हमारे पास जो 24 हाई कोर्ट्स हैं, they started endorsing this judicial activism at a very high level. So Supreme Court itself in various judgments kept saying this. स्टार्ट तो कर दिया, बट एज देयर इज अ मिसयूज और ओवर रीच ऑफ द दिस पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू, पर्टिकुलर दिस जुडिशियल रिव्यू फ्रेज. सो क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोलना पड़ा कि वाइल एंटरटेनिंग अ पर्टिकुलर PIL और अ पर्टिकुलर केस, judges of the high courts, not the high courts but all the judges should restrain themselves from going out of the limit of the constitution. ठीक है, तो बार बार में ये चीज़ बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि रेस्ट्रेन रखो, इतना भी आप एक्टिविज्म डायनामिज्म मत दिखाओ इधर उधर। अंडरस्टूड। एक और केस चीज़ थी, अभी याद आ गई मुझे, कि अ पर्टिकुलर केस हैज़ बीन ऑर्डर हैज़ बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट नेशनल हाईवे के within 500 meters there can't be any liquor shops। तो लिकर शॉप्स का रेवेन्यू किसके पास आता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को तो दिक्कत हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिक्कत है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिक्कत है, बट जुडिशरी तो ऊपर है, सबसे पेडेस्ट्रियन पे बैठा रखा है हमने, तो इसको फॉलो तो अब करना ही पड़ेगा। तो क्या किया लोगों ने? 500 मीटर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला ना इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ 500 मीटर यू कांट ओपन अ लिकर शॉप। तो उन्होंने क्या किया, ये गोल गोल घुमा के इधर 10 मीटर पे एक लिकर शॉप खोल दी। सो यू नो जुडिशरी इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सो ही हैज नो राइट टू लेजिस्लेट ओवर सम मैटर्स। मोर ओवर इट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द एक्सपर्ट और एक्सपर्टीज ऑफ द जुडिशियल सिस्टम टू legislate a particular law or to execute a particular order. क्यों? Because they don't know the ground realities that are happening in the country. Yes, they have wisdom, but they don't know or don't have the expertise of the ground realities. वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। IAS क्या है? एग्जीक्यूटिव्स हैं, वही तो सब PM को हमारी जानकारी देते हैं, CM को जानकारी देते हैं। ठीक है, so these were all about the judicial review, judicial activism, judicial overreach and judicial restraint. तो I hope you like this particular discussion. Although अगर मैं सही बताऊं तो this particular discussion it is of main perspective, पूरी main perspective की थी, पर ठीक है इसमें भी कवर कर दिया, आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। So please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।